Hello class 7. In this video we explain exercise 8.6 simple interest. See the question number first. Find the simple interest on 5,000 rupees at 8% per annum for 3 years. Mean in this given question principal and rate of interest and time. We find the simple interest. Given principal 5,000 rupees, rate 8% and time 3 years. By using formula we know that SI equal to P into R into T by 100. Put the value P 5,000 rupees, rate 8% and time 3 years divided by 100. Then simplify 0 cut. Then we get 50 into 8 into 3. Mean 5 8 ja 40. 400 into 3 we get 1200 rupees. So required a simple interest 1200 rupees. See the question number second. Question number second. What sum of money amount to 2025 रुपीज़ इन 3 मंथ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. मीन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में व्हाट सम ऑफ मनी मीन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है एंड अमाउंट मीन ए गिवन है एंड टाइम यहाँ पे दिया है 3 मंथ में. और मैंने आपको बताया जो टाइम हमारा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए ईयर्स में. मीन 3 मंथ चेंज इनटू ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. ओके स्टूडेंट. देन फर्स्ट यू let sum of money be P rupees. Then amount given 2025 rupees and time period 3 month. 3 months change into year because we know that 1 year is equal to 12 month. Mean 3 divided by 12. 3 1 ja and 3 4 ja mean 1 by 4 years. And here we know that 1 year is equal to 12 month. Okay student. That is final. We get time period 1 by 4 year and rate of interest 5%. Here we find the principal. That is स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो प्रिंसिपल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो आप या तो फिर एस आई फाइंड करेंगे. एस आई जो आपका फाइंड होगा वो पी के फॉर्म में फाइंड होगा. फिर उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अमाउंट बाय यूजिंग फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. मीन हेयर गिवन अमाउंट 2025 rupees and principal we let x प्लस SI का मैंने आपको फॉर्मूला बताया. एस इक्वल क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो मीन SI के प्लेस में हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100. देन पुट द वैल्यू ऑफ P मीन वी लेट x एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम 1 बाई 4 इंटू 100. देन रिड्यूस इट 5 1 जा 5 2 जा मीन 2025 इक्वल x plus here x and 4 2 ja 80. Let 1 and take the LCM. Then 1 into मीन 1 को 80 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा. इससे मीन 80 आपको हो जाएगा. मीन x इंटू 80 प्लस x. 1 के साथ जब किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो वहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम में आपका जो 1 से ग्रेटर नंबर होगा वो हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. मीन 80 इंटू एक्स एंड 1 इंटू एक्स. दैट इज वी गेट 80x plus x by 80. Then write in a standard form 80 plus 1 81x by 80 equal 2025. Then find the value of x. Mean x equal 2025 into 80 and divided by 81. Then here reduce 9 9 ja 81, 9 2 ja 18, carry 2 22, 9 2 ja 18 and carry 4 9 5 ja 45. Then 9 1 ja and 25 9 ja 225. That is we get 25 into 80. Then multiply 25 8 ja 200. Mean required principal 2000 rupees. This is your final answer. Then see the question number 4. After what time will 4,000 rupees give an interest of 500 at 5% per annum. Mean in this question we find time and given principal and interest and also rate of interest. That is we find time equal question mark principal 4,000 simple interest 500 rupees and rate of interest 5% per annum. That is we find टाइम. तो इसमें मैंने टाइम रेट एंड प्रिंसिपल फाइंड करने का यूनिक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में. दैट इज टी इक्वल टू SI इंटू 100 divided by P into R. Put the value of SI 500 rupees
into 100 and principal 4,000 rupees and rate of interest 5, that is 1 2 3 1 2 3 3 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे, then 5 1 जा mean 10 by 4, that is reduced to 2 जा to 5 जा, mean time is equal to 5 by 2 years. Otherwise you write in mixed fraction, that is 2 whole 1 by 2 years. See the question number 5. In what time will a sum of money double itself at 6 whole 1 by 4% per annum simple interest? Student, most important question, that is इस क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो हमारी जो मनी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मीन 2 टाइम हो जाएगा. मीन अगर आप बैंक में 100 रुपीज़ सबमिट किए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 होल 1 by 4% पे, तो आपको बताना है कितने टाइम पीरियड, कितने ईयर्स के बाद जो हमारा अमाउंट मनी है जो आपने प्रिंसिपल 100 रुपीज़ सबमिट किया है वो 200 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, देन सी द सॉल्विंग, दैट इज हियर लेट द सम ऑफ मनी बी पी एंड अमाउंट. अगर आपने p रुपीज़ सबमिट किया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन 6 होल 1 by 4% चेंज इनटू इम्प्रॉपर, दैट इज 25 by 4% एंड टाइम इज अ क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट इसको मैं 2 टाइप से आपको एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट टाइप देखेंगे. फर्स्ट वी हियर फाइंड SI, mean we know that amount equal to principal plus SI, amount 2p and principal p and SI. mean अगर आपको amount and principal given है तो आप SI फाइंड करना चाहते हैं, mean SI equal to amount minus principal, that is we get 2p minus p, that is p rupees. mean जो आपका SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा p rupees. then we find the time equal to SI into 100 by p into r. put the value SI p into 100 बाई प्रिंसिपल पी को हमने पी ही लेट किया है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 by 4. अब ये जो बाई में 4 है यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा, सीधे न्यूमिनेटर में, दैट इज़ वी राइट एंड पी कैंसिल, देन 100 इंटू 4 by 25, देन रिड्यूस 25 1 जा 25 4 जा, वी गेट 8 ईयर्स, सॉरी 4 4 जा 16 ईयर्स. मीन हमारा जो अमाउंट डबल कितने ईयर्स के बाद होगा, 16 ईयर्स में. ओके स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी सिंपल है. जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे आपको क्वेश्चन करना होगा. ओके स्टूडेंट, अब सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल को हम लेट कर लेंगे 100 रुपीज़. ओके, देन अमाउंट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, मीन कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 मीन 200 रुपीज़. मीन हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपीज़. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, SI फाइंड करेंगे. SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन 200 माइनस 100 वी गेट 100 रुपीज़. मीन हमारा SI कितना हो जाएगा 100 रुपीज़. ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 25 by 4%. वी फाइंड टाइम, दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला T इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R. पुट द वैल्यू SI 100 इंटू 100 एंड प्रिंसिपल वी लेट 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 by 4. 4 जो बाई का होगा वो न्यूमिनेटर पहुँच जाएगा, 100 कैंसिल एंड 25 1 जा 25 4 जा, टाइम इक्वल टू 4 इंटू 4, दैट इज 16 ईयर्स. तो ये भी काफ़ी सिंपल है, 100 से भी आप कर सकते हैं, एक्स या कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 8.6 के रिमेन क्वेश्चंस आपको करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा. ओके, थैंक यू.